हाँ जी मैम, आई विल सॉर्ट इट आउट। हाँ जी मैम। You are live, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Today is our financial accounting lecture 3. In today's class, we are going to discuss the remaining part of basic. In our last class, we discussed the way of journal entry and the way of recording transactions in secondary books of accounting. So let's start with today's lecture. Today we are going to discuss double entry, or you can say the 2-column cash book. In yesterday class we discussed single column cash book. So in double column cash book, either you take discount and cash or cash on bank. As I told you yesterday, in some books you will find discount and cash as 2-column, and in some books you will find cash and bank as a 2-column cash book. So don't worry about it, both are correct. So let's understand this particular things with the help of a numerical. Format is same, only we add one extra column as we discussed in the last class. See, we discussed this concept of 2-column cash book with the help of a question. So question is, enter the particular in cash book with cash or bank column. Clearly mention you enter these transaction in the column of the cash book in which cash and bank column is given. So as you can display, this is the format: date, particular, ledger folio, cash, bank, date, particulars, LF, cash, bank. This is debit side and this is credit side. One by one, we are going to post all the transactions of our question in this particular format. Our first transaction is on April 1st, balance of cash in hand rupees 2000 and at bank 12,000. Cash in hand and cash at bank, यानी कि ये ongoing business है. This is not the first time started business. अगर first time started business होता तो वहां की starting कहां से होती है? कैपिटल से. यहाँ पे आपको balances given है, it means ये ongoing business है. तो जो starting के balances होते हैं उनको हम show करते हैं balance brought down. On April 1st, first you write to balance brought down. Cash balance mentioned in the cash column 2000 and bank balance show on the bank column 12,000. And then post the rest transactions. Now commit April 3. Receive cash from Madhav. Receive cash from Madhav. कैश रिसीव हुआ है. एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास, जहां से कैश का इनफ्लो होगा उनको कहां पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड. और जहां पे कैश का आउटफ्लो होता है उनको कहां पोस्ट करना है? क्रेडिट साइड. पॉइंट टू बी नोटेड, अगर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रहा है, चेक के थ्रू हो रहा है, तो आप बैंक कॉलम में मेंशन करेंगे, और अगर लिक्विड कैश के फॉर्म में हो रहा है तो उसे आप कैश कॉलम में करेंगे. तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में क्लियर कट गिवन है, रिसीव कैश फ्रॉम माधव. कैश रिसीव हुआ है, रिसीव है तो किस साइड आएगा? डेबिट साइड. और आपको कैश किससे रिसीव हुआ है? माधव से. तो क्या राइट करेंगे? टू माधव. एज आई टोल्ड यू, या तो आप माधव लिखिए या माधव अकाउंट आप राइट करेंगे. और कैश रिसीव हुआ है तो इसको कहाँ मेंशन करेंगे? कैश कॉलम में. देन आफ्टर दैट April 5, कैश सेल्स यानी कि इनफ्लो हो रहा है सेल से, और कैसी कैश सेल से? कैश, यानी कि अमाउंट कहां पोस्ट होगी? कैश कॉलम में. 1000. 6 अप्रैल टू सेल्स. ये जो कैश आया है किसके थ्रू आया है? सेल्स के थ्रू, सेल्स अकाउंट. एंड नेक्स्ट वन इज परचेज बाय चेक. परचेज बाय चेक, परचेज से क्या होगा? आउटफ्लो होगा. लेकिन परचेज किसके थ्रू की जा रही है? परचेज की जा रही है चेक के थ्रू, यानी कि बैंक से पेमेंट जाएगा. तो इसको आप क्या किस पर्टिकुलर कॉलम में शो करेंगे? आप इसको बैंक कॉलम में शो करेंगे 745. और क्या राइट करेंगे? बाय परचेजेस अकाउंट. एंड आफ्टर दैट पेड इनटू बैंक. इस ट्रांजेक्शन को समझने से पहले एक फंडा समझिए. While you are preparing a cash book with cash and bank column, there is a concept of contra entry. जब भी आप ऐसी बुक के साथ डील करते हैं
जिसमें कैश और बैंक कॉलम साथ में यूज होते हैं, तो उसमें एक हमें ध्यान रखना होता है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री इज द एंट्री इन विच कैश और बैंक बोथ अकाउंट इन्वॉल्व इन द सेम ट्रांजेक्शन। आपके एक ही ट्रांजेक्शन में अगर कैश और बैंक दोनों साथ में आते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि आप जो कैश बुक रेडी कर रहे हो उसमें कैश और बैंक दोनों कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन ए करंट अकाउंट। बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है, तो अगर मैं ओपन ए अकाउंट या ओपन ए करंट अकाउंट की बात करती हूँ तो इन सारी सिचुएशन का मतलब है कि भाई कैश जो है बिजनेस से लेस हो रहा है और बैंक में क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको जर्नल एंट्री में भी बताया, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया और बिजनेस के पास जो अवेलेबल कैश था वो क्या हो गया? लेस हो गया। इसको कैश बुक में कैसे दिखाते हैं? सपोज ये रफ फॉर्मेट है कैश बुक का, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। यहाँ पे आपने कॉलम बनाया कैश कॉलम बैंक कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। अब यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक अकाउंट में। सपोज ये अमाउंट है 1000 रुपीज, तो जो अमाउंट है वो बैंक में जाएगी, लेकिन नाम किसका लिखना है? अपोजिट का, टू कैश। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में लिखेंगे सी, यानी कि टू कैश करके अमाउंट कहाँ पोस्ट हो गई? बैंक में। और क्योंकि कैश की भी एंट्री है और कैश कॉलम भी अपने पास अवेलेबल है, तो हम क्या राइट करेंगे? बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कहाँ पोस्ट करेंगे इसको? कैश कॉलम में। आई एम रिपीटिंग, अगर पेड इनटू बैंक, डिपॉजिट इनटू बैंक या ओपन करंट अकाउंट है तो जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि ये ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहे हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आते हैं, उसको अगर हम सोल्व करते हैं कैश बुक में, तो हमें ध्यान रखना होता है कि इस तरह की एंट्री को हम क्या कहते हैं? दिस एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और कॉन्ट्रा एंट्री में हम दो बार पोस्टिंग करते हैं, एक बार डेबिट साइड और एक बार किस साइड? क्रेडिट साइड। तो इसमें डेबिट बैंक है, तो इसलिए बैंक के डेबिट कॉलम में एंट्री हो गई टू कैश करके, और बाय बैंक करके कैश के क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में एंट्री हो गई। बिसाइड दिस, सपोज आपको गिवन है विथड्रॉ और ड्रू फ्रॉम बैंक, विथड्रॉ और ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस पर्पज से आपने अगर बैंक से मनी विड्रॉ की है, विड्रॉ और ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इफ यू आर डूइंग दैट, तो ये भी क्या है? एक कॉन्ट्रा एंट्री है, क्योंकि बैंक में आपकी मनी क्या हो जाएगी? विड्रॉ हो जाएगी, और कैश में आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। एंट्री क्या हो जाएगी सिचुएशन में? कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक माइनस हो रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ, कैश प्लस हो रहा है बिजनेस पे, इसलिए वो क्या हो गया? डेबिट। अब इसको कैश बुक में कैसे पोस्ट करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश कॉलम में अमाउंट कहाँ आएगी? डेबिट में, और किससे? टू बैंक। ब्रैकेट में क्या मेंशन करना है? कॉन्ट्रा एंट्री, बोथ दी साइड। जहां पे भी एंट्री पोस्ट करोगे इसके एलएफ में क्या लिख देना है? सी। बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट कॉलम में एंट्री आएगी। किस वजह से बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। तो इस तरह की अगर सिचुएशन है तो वहां पे कॉन्ट्रा एंट्री करनी होती है, यानी कि एज पर सिचुएशन आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड एंट्री करनी होती है कैश और बैंक कॉलम में, और आपको ब्रैकेट में मेंशन करना होता है कॉन्ट्रा एंट्री का सी। इसके अलावा सपोज एक सिचुएशन है कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए बैंक से कैश विथड्रॉ हो रहा है तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स
account debit to bank account. As I told you, कॉन्ट्रा एंट्री तभी होती है जब ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप बैंक से पर्सनल यूज के लिए, यानी कि बिजनेस का ओनर अगर पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करता है तो उस सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है। अभी अपने क्वेश्चन में आते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉन्ट्रा एंट्री होगी या नहीं होगी। सी, हमारी जो अप्रैल 10 की एंट्री है, अप्रैल 9 की एंट्री है, वो है पेड इनटू बैंक, यानी कि फर्स्ट वाली सिचुएशन जो आपको मैंने बताई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अब बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितनी वैल्यू से, 1850 से, 1850, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है इसलिए बैंक कॉलम क्या हुआ है, प्लस हुआ है 9 अप्रैल। ब्रैकेट में जो LF है उसके ब्रैकेट में क्या राइट करना है, C। एंड देन फिर से अप्रैल 9 की एंट्री, कैश माइनस हो रहा है तो कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड जाएगा 1850, किस नेम से जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। यानी कि जिस कॉलम में आप पोस्ट कर रहे हो उसका नाम नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैश में पोस्टिंग कर दी और कैश का ही नाम लिख रहे हो। जब आप कैश कॉलम में पोस्टिंग कर रहे हो तो बैंक का नाम आएगा, और बैंक कॉलम में पोस्टिंग कर रहे हो तो किसका नाम आएगा, कैश का। अब किस में पोस्टिंग करनी है वो बैलेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आपको मैंने बताया कैश बुक में डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। तो पेड इनटू बैंक से बैंक प्लस हुआ इसलिए बैंक के डेबिट कॉलम में अमाउंट आई, और कैश माइनस हो गया क्योंकि आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो इसके क्रेडिट कॉलम में आई। और LF में आइडेंटिफाई करने के लिए कॉन्ट्रा के लिए क्या लिखते हैं, C। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, पेड कैश फॉर फ्रेट ₹54, एक्सपेंसेस पे की है। कोई भी एक्सपेंसेस पे करते हैं तो कैश का क्या होता है, आउटफ्लो, यानी कि एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड एंट्री आएगी बाय फ्रेट अकाउंट। अब अमाउंट किस में आएगी, कैसा पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस, कैश पे कर रहे हैं, तो इसको हम कहां से डिडक्ट करेंगे, वी डिडक्ट दिस इन द कैश कॉलम 54। और जहां पे कोई एंट्री नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देना है आपको, उसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। देन आफ्टर दैट अप्रैल 12 ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ड्रॉ किया है यानी कि बैंक से पैसा विड्रॉ किया है ऑफिशियल पर्पस के लिए। ऑफिशियल पर्पस के लिए आपने बैंक से मनी विड्रॉ की है, यानी कि बैंक हो गया माइनस, तो बैंक में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कि अमाउंट कहाँ आनी है। विड्रॉ करने से बैंक माइनस होगा तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में एंट्री आएगी और नाम क्या होगा, अपोजिट। बैंक में एंट्री लिख रहे हो तो क्या लिखना पड़ेगा, बाय कैश अकाउंट। और डेट क्या है आपकी, 12 अप्रैल। ब्रैकेट में कॉन्ट्रा LF में, और कैश प्लस होगा क्लैश में, डेबिट साइड आप अमाउंट पोस्ट करेंगे किससे, अपोजिट से। कैश कॉलम में है तो क्या नाम राइट करेंगे आप, टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में कॉन्ट्रा एंड डेट सेम डेट 12 अप्रैल। क्लियर, आई होप आपको कॉन्ट्रा एंट्री का पर्टिकुलर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। देन आफ्टर दैट issue a check in favor of Messrs Arun and Sons for ₹985। आपने चेक इशू किया। देखिए बिजनेस में जो कैश बुक है, कैश बुक बिजनेस के पास मेंटेन होती है और पासबुक बैंक के पास मेंटेन होती है। तो जब हम कैश बुक में एंट्री करते हैं तो जिस दिन हम पर्टिकुलर चेक इशू करते हैं उसी दिन हम मान के चलते हैं कि हमने क्या कर दिया, उस ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट कर दी। उसने बैंक में चेक डिपॉजिट किया या नहीं किया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। वो डिफरेंस का रीजन हम फाइंड आउट करते हैं BRS में, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं कि क्या रीजन है कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैंक बैलेंस जो है उसमें डिफरेंशिएट का क्या रीजन है। क्योंकि हम जब कैश बुक अपने बिजनेस में मेंटेन करते हैं तो जिस दिन चेक इशू करते हैं या जिस दिन रिसीव करते हैं उसी दिन हम क्या मान के चलते हैं, पेमेंट हमें रिसीव हो गई है या पे हो गई है। तो अब आपने चेक इशू किया है, इट मींस आपने पेमेंट कर दी है। जब भी आपको
चेक इशू की एंट्री आए तो आपको उसे एज अ पेमेंट ही कैश बुक में एंटर करना है। अप्रैल 13 बाय, किसको आपने चेक दिया है? बाय मेसर्स अरुण एंड सन्स, और ये अमाउंट कितनी है? 985 चेक से पेमेंट हुई है। इट मींस इसको कहाँ मेंशन करेंगे? बैंक कॉलम में 985। साइड बाय साइड आप ट्रांजैक्शन लिखते जाइए, मैं आपको बाद में पूरा प्रॉपर इस तरह से डिस्प्ले कर दूंगी। हम अभी पोस्ट कर चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर चुके हैं, परचेज का पोस्टिंग हम कर चुके हैं, कॉन्ट्रा एंट्री हम पोस्ट कर चुके हैं। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे लेटर ऑन। जो जो हम पोस्टिंग करते जाएंगे वो प्रॉपरली यहाँ पे मैं आपको क्या कर दूंगी? डिस्प्ले कर दूंगी, ताकि अगर आपको मेरी राइटिंग समझने में स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर पहले ट्रांजैक्शन को समझिए कि किस तरह से हम लोग क्या करते हैं? पोस्टिंग करते हैं। देन आफ्टर दैट अप्रैल 16 पेड इनटू बैंक, अगेन बैंक में पैसा जमा करने की एंट्री आ गई। पेड इनटू बैंक, बैंक प्लस कैश माइनस, ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको भी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। पेड वाली एंट्री क्या है? बैंक प्लस हो रहा है तो बैंक की डेबिट साइड 715, बैंक के डेबिट साइड जिस कॉलम में एंट्री करेंगे उसका अपोजिट लिखेंगे। बैंक है तो क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट 16 अप्रैल। और कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्रेडिट साइड आएगा 715, अपोजिट नाम लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे बैंक का, बाय बैंक अकाउंट, and the date is 16th April. Then after that, draw cash for his son's birthday party. कैश ड्रॉ किया है बिजनेस से सन की बर्थडे पार्टी के लिए। यहां से ये नहीं लिखा कि बैंक से निकाला है। ड्रॉ कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे पार्टी। तो आप जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करते हो, आई टोल्ड यू, वो क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है। तो सबसे पहले इसमें आप क्या वर्ड यूज करेंगे? ड्रॉइंग्स। और कैश का बिजनेस से क्या हो रहा है? आउटफ्लो। तो बाय क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अमाउंट कहाँ आएगी? कैश में या बैंक में? क्लियर कट लिखा हुआ है ड्रॉ कैश, तो आप किस में अमाउंट लिखेंगे? कैश में 175। एंड आफ्टर दैट 19th April received a check from Naveen for ₹380 and deposited it into bank on the same day. देखिए इसको भी ध्यान से समझिए जरा। 3 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन है जिस दिन चेक मिला उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दी। आपको जिस दिन चेक मिला अगर वो चेक सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, जिस दिन चेक रिसीव्ड हुआ है अगर चेक सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट हो जाता है, वो पहली सिचुएशन है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं? टू पार्टी नेम, जो भी पार्टी ए बी सी डी जो भी पार्टी का नाम है वो लिखेंगे और अमाउंट सीधा कहाँ पोस्ट कर देंगे? उसको बैंक कॉलम में पोस्ट कर देंगे। आई एम रिपीटिंग, साथ के साथ लिखते जाइए। पहली सिचुएशन है अगर आपको एक चेक रिसीव्ड हुआ है और सेम डे पे आपने उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया है तो टू पार्टी नेम लिख के डेबिट साइड में टू पार्टी नेम और उसकी अमाउंट कहाँ पोस्ट कर दोगे? बैंक कॉलम में। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है कि आपको चेक रिसीव्ड हुआ वन डेट पे और आपने बैंक में डिपॉजिट कराया लेटर डेट पे। सपोज आपको जो चेक मिला है वो मिला है अप्रैल 19 को रिसीव्ड हुआ है चेक और आपने उसे बैंक में डिपॉजिट कराया है सपोज अप्रैल 21 में। सपोज आई एम गिविंग यू द एग्जांपल कि सपोज इसलिए कि क्वेश्चन में हमारे इन डिफरेंट सिचुएशन है, बट जो भी कनेक्टेड चीजें हैं वो मैं आपको साइड बाय साइड सारी चीजें कन्वे कर रही हूँ। अप्रैल 19 को रिसीव हुआ, अप्रैल 21 को वो डिपॉजिट कराया अकाउंट में। जिस दिन रिसीव होता है उस दिन एंट्री होती है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, यानी कि अभी पैसा हमारे पास आया नहीं है। तो कैश बुक जब आप बना रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक डेट को चेक मिला है और बाद में ट्रांजैक्शन में लिखा है कि किसी और डेट को उसे बैंक में डिपॉजिट कराया, तो जिस दिन डिपॉजिट कराते हैं उस दिन जिस दिन रिसीव्ड होता है उस दिन कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करते। जिस दिन आप बैंक में डिपॉजिट कराओगे
उस दिन आप एंट्री करोगे डेबिट साइड में। कैश और बैंक कॉलम है आपके पास, आप क्या लिखोगे डेबिट साइड में? टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड, और अमाउंट कहां पोस्ट कर दोगे? बैंक में। आई एम रिपीटिंग, जिस दिन चेक मिला उस दिन कोई एंट्री पास नहीं होगी कैश बुक में। जनरल प्रॉपर में एंट्री पास हो सकती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम, बट कैश बुक में इस दिन कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। जिस दिन आप चेक को बैंक में डिपॉजिट कराओगे उस दिन पे कैश बुक की डेबिट साइड में टू चेक इन हैंड लिख के बैंक कॉलम में अमाउंट को क्या करोगे? मेंशन करोगे। तो ये क्या हो गया? सेकंड सिचुएशन, यानी सेकंड में एट द डेट ऑफ डिपॉजिट, एट द डेट ऑफ डिपॉजिट क्या एंट्री होगी? टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, और अमाउंट कहां पोस्ट कर देंगे? बैंक कॉलम में। क्लियर? नाउ थर्ड सिचुएशन, समटाइम क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, सिर्फ गिवन होता है चेक रिसीव्ड। तो आप ऐसी सिचुएशन जहां पे चेक रिसीव्ड मेंशन है, डिपॉजिट कब हुआ उसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है लेटर स्टेज पे, तो आप ये एज्यूम करके चलते हो कि जिस दिन चेक मिला उसी दिन आपने उसको डिपॉजिट करा दिया, और उसकी सिचुएशन जो है वो ऐसे ही ट्रीट करते हो जैसे कि फर्स्ट वन की, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन की तरह ही आप क्या कर देते हो? कैश बुक में पोस्टिंग। क्लियर? नाउ कम एट आवर क्वेश्चन। See dear, our question is received a check from Naveen 380 and deposit it into the bank। हमारा फर्स्ट सिचुएशन है, क्लियर कट गिवन है, सेम डेट पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। 19 टू नवीन, अमाउंट कहां चली जाएगी? सीधा बैंक में 380। देन आफ्टर दैट कैश सेल्स, कैश सेल्स इनफ्लो हो रहा है कैश का। अप्रैल 20 कैश सेल्स, तो क्या राइट करेंगे? टू सेल्स अकाउंट, और कैश सेल्स है, अमाउंट कहां पोस्ट हो जाएगी? कैश कॉलम में। इनफ्लो सारे बार बार रिपीट कर रही हूं, जहां से कैश का इनफ्लो हो रहा है, चाहे वो कैश आ रहा है चाहे बैंक में आपके पैसा आ रहा है, उन सारी ट्रांजेक्शन को डेबिट साइड पोस्ट करना है, और जहां से कैश का आउटफ्लो हो रहा है या बैंक में से पेमेंट का आउटफ्लो हो रहा है वो कहां पोस्ट करनी है? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट वन इज ट्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से मनी विड्रॉ की है, अगेन कॉन्ट्रा एंट्री विड्रॉ वाली। बैंक से विड्रॉ किया तो बैंक कॉलम में क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब है क्रेडिट। बैंक कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो क्या लिखना है? कैश का नेम, बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना है कॉन्ट्रा मेंशन करने के लिए, एंड डेट इज 25 अप्रैल। कैश क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो कैश कॉलम में डेबिट साइड में आप लिखेंगे अमाउंट। आपका कैश विड्रॉ हो रहा है तो कैश क्या आ रहा है? आ रहा है 200। कहां से आ रहा है कैश? बैंक से, बैंक अकाउंट। आई एम रिपीटिंग, आपको क्या बोल रहा है? ड्रॉ कैश, कैश आपने विड्रॉ किया है बैंक से फॉर ऑफिस यूज, तो कैश प्लस हो रहा है, इसलिए कैश कॉलम के डेबिट साइड में आया, और जिसका कॉलम में आता है उससे अपोजिट नाम लिखते हैं। कैश कॉलम में लिखा कॉन्ट्रा में, तो नाम किसका लिखेंगे? बैंक का। और विड्रॉ हो रहा है क्योंकि, तो बैंक कॉलम लेस होगा, क्रेडिट होगा, और नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट का। एंड देन आफ्टर दैट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, दोनों की में कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन करना मत भूलना, ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने एक ट्रांजेक्शन को, एक डेट की ट्रांजेक्शन को टू डिफरेंट प्लेसेस पे क्या किया हुआ है? पोस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट वन, परचेज फर्नीचर ₹1,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ₹1,000 का फर्नीचर आपने परचेज किया है और पेमेंट की है चेक से। आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, इट मीन्स आपके पास से कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है 26 अप्रैल को बाय फर्नीचर। आई टोल्ड यू, अगर आप एसेट खरीदते हो तो परचेज वर्ड यूज नहीं करते हो, आप क्या यूज करते हो? एसेट का नेम। आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, इसलिए अमाउंट कहां चली जाएगी? अमाउंट आपकी चली जाएगी बैंक अकाउंट में, यानी कि बैंक कॉलम में। एक बार मैं डिस्प्ले आपको शो कर रही हूं सो दैट यू आर एबल टू
नो द ट्रांजेक्शन प्रॉपरली, वहां पे हम क्वेश्चन के साथ में लिख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशन है, जो भी हम लोग एंट्री कर रहे हैं उसको पर्टिकुलरली शो करते जाएंगे। सारी एंट्री का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो, वहां पे मैं आपको साइड बाय साइड बता रही हूँ, यहाँ पे फुल फ्लैश सोल्यूशन है। तो सारी एंट्री इस तरह से अपनी प्रॉपरली क्या कर लेनी है, पोस्ट कर लेनी है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस, नवीन चेक डिसोनर्ड, बैंक चार्जेस 5। अब नवीन का चेक देखिए कितना था, नवीन का चेक था 380 का, चेक डिसोनर हो गया और उसके ऊपर बैंक चार्जेस भी देने पड़े 5, यानी कि कितना 385 टोटल। आपने जब नवीन से चेक रिसीव किया था तो नवीन अकाउंट किया था और 380 से बैंक को क्या किया था, आपने बैंक को प्लस किया था। लेकिन ये चेक क्या हो गया, आपके बैंक ने आपको इंफॉर्मेशन पास की है कि चेक क्या हो गया, डिसोनर हो गया है। तो चेक डिसोनर हो गया है, तो ये ट्रांजेक्शन को हमें रिवर्स करना है। तो हम क्या कर देंगे, ऑन 27 तो नवीन है उसके अकाउंट को वापस, क्योंकि नवीन के नाम से ही ये चेक रिसीव हुआ था, लेकिन अब अमाउंट क्या होगी 380 प्लस 385। आप इस तरह से इसको क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। अप्रैल 27 नवीन, 380 चेक की अमाउंट है, 5 रुपीज चार्जेस है, यानी कि आपके बैंक से कितना पैसा कट हो गया है, माइनस हो गया है 385। तो अप्रैल 27 की आप विथ बैंक चार्जेस ट्रांजेक्शन को क्या कर देंगे, पोस्ट कर देंगे। Then next transaction, purchase business premises, payment made by check। आपने बिजनेस प्रेमिसेस परचेज की हैं और चेक से पेमेंट की है। बिजनेस प्रेमिसेस क्या है, फिक्स एसेट है, तो बाय बिजनेस प्रेमिसेस, और अमाउंट कहां से चली जाएगी, आपके बैंक कॉलम से। तो आप क्या लिखेंगे, अप्रैल 29 बिजनेस प्रेमिसेस अकाउंट, और अमाउंट कहां चली जाएगी, आपके बैंक कॉलम में, क्योंकि बैंक कॉलम से अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रिसीव चेक 4 रुपीज 675 फ्रॉम हरीश। हरीश से चेक मिला, अब आगे ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो क्या एज्यूम करोगे, जिस दिन मिला उसी दिन सेम डे पे बैंक में क्या करा दिया, डिपॉजिट करा दिया। तो वही वाले फंडे की तरह क्या करना है आपको, एंट्री अप्रैल 30 हरीश, और उसके बाद आपने डायरेक्टली सीधा चेक की अमाउंट कहां पोस्ट कर देनी है, बैंक कॉलम में। आई एम रिपीटिंग, मैंने आपको बताया कि अगर कोई चेक रिसीव्ड हुआ है और उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, उसको ये एज्यूम करते हैं कि जिस दिन रिसीव हुआ उसी दिन हमने क्या किया, उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। क्लियर, सारी ट्रांजेक्शन आपने पोस्ट कर दी, फिर आप क्या करते हो, कैश कॉलम का टोटल करते हो, यानी कि कैश के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का आप क्या करोगे, टोटल करोगे। तो कैश के डेबिट और क्रेडिट साइड का जब आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि डेबिट साइड का टोटल बिग आ रहा है, आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5800। जो बिग टोटल होता है दोनों साइड उसी को लिखते हैं, 5800 5800। और जो डेबिट साइड का आपका टोटल है 5800, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्रेडिट साइड का आप टोटल करोगे, इसको क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे यू विल गेट 3006। इसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर, यानी कि जो आपने थ्रू आउट द मंथ ट्रांजेक्शन की है, जो बैंक में कैश का आपका इनफ्लो हुआ है और कैश का आउटफ्लो हुआ है, उसके बाद आपके पास कैश का कितना बैलेंस बच गया है, 3006। और ये बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा जिस भी मंथ की आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके लास्ट डे पे करना है। जैसे ये अप्रैल चल रहा है तो अप्रैल का लास्ट डे क्या होता है, 30th अप्रैल। तो 30th अप्रैल को आप क्या लिखोगे, बैलेंस कैरिड डाउन, और उसको मेंशन कर दोगे। सिमिलरली डू फॉर बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का डेबिट साइड का टोटल है 15,915। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डेबिट साइड ही ग्रेटर आ रहा है, आप दोनों साइड सेम टोटल लिखोगे 15,915। डेबिट साइड के टोटल में से यानी कि 15,915 में से आप क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आप जब माइनस करोगे तो आप देखोगे कि आपकी ट्रांजैक्शन क्या आ रही है, बट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड का आ रहा है। जैसे कि कैश में हमारा डेबिट साइड का आया था, बैंक कॉलम में अगर आप टोटल चेक करो तो आपका जो टोटल आ रहा है वो क्रेडिट साइड का मोर आ रहा है। इट मींस जितना
कैश में हमारा इनफ्लो बैंक अकाउंट में इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो उससे ज्यादा हो गया है। हमारा जो बैलेंस है, हमारा क्रेडिट साइड नहीं बच रहा है, बैलेंसिंग फिगर बैंक की कहाँ बच रही है, डेबिट साइड। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा। क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। जैसे ही आप क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल लेस करोगे तो आपको बैलेंसिंग फिगर गेट हो जाएगी 295। ये जो 295 बैलेंसिंग फिगर है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में जितना पैसा था आपने उससे ज्यादा यूज कर लिया। आपके अकाउंट में जो पैसे का इनफ्लो हुआ है वो है डेबिट साइड, जो आउटफ्लो हुआ है वो क्रेडिट साइड। तो जो आउटफ्लो है वो इनफ्लो से ज्यादा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपकी कहाँ पे बचेगी, डेबिट में। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक में हमने बात की है, यानी कि बैंक कॉलम की बात की है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको क्या शो करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ध्यान से देखिए, कभी भी कोई भी बैलेंस को कैरी डाउन पे ड्रॉप नहीं करना है, हमेशा उसे नेक्स्ट पीरियड में क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। अगर आपका कैरी डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड बचा है तो उसकी क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ करोगे, डेबिट साइड। अप्रैल के बाद कौन सा मंथ स्टार्ट होगा, मे 1 बैलेंस ब्रॉट डाउन और यही अमाउंट 3006 शिफ्ट कर दोगे। और बैंक कॉलम का आपका डेबिट साइड आया है तो इसको आपको कहाँ शिफ्ट कर देना है, क्रेडिट साइड, क्रॉस शिफ्टिंग करनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैंक कॉलम में। एक बार फिर ट्रांजैक्शन पोस्ट कर दी। उसके बाद हमने कैश कॉलम के डेबिट साइड और कैश कॉलम के क्रेडिट साइड का टोटल किया। हमने देखा कि कैश कॉलम के डेबिट साइड का टोटल बिग था, 5800 था, तो दोनों तरफ ही बिग टोटल को मेंशन कर दिया। उसके बाद बिग टोटल में से स्मॉल टोटल, यानी कि डेबिट साइड ग्रेटर है, तो डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड का टोटल क्या किया, माइनस किया। जो बचा उसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, और उसे उस मंथ की लास्ट डेट को, अप्रैल है तो अप्रैल की लास्ट डेट है 30th, इसमें लिख दिया बैलेंस कैरिड डाउन। इसी तरह से फिर हमने बैंक कॉलम का टोटल किया, डेबिट और क्रेडिट का। बैंक कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इट मींस जितना अकाउंट में पैसा आया है उससे ज्यादा यूज हुआ है, इसलिए इसका बैलेंस कहाँ बचा, डेबिट साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा अप्रैल 30 बैलेंस कैरिड डाउन और अमाउंट हो गई बैंक कॉलम में। अगेन वही फंडा, डेबिट और क्रेडिट का क्या लिखना है, डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट ग्रेटर था, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, जो बैलेंसिंग फिगर आई कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट करेंगे, वो आ जाएगा आपका 295। कैलकुलेटर आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन में सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, साइंटिफिक अलाउड नहीं होता, सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के लिए अलाउड होता है। तो आप कैलकुलेशन करके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। आपको बताया जो कैरिड डाउन बैलेंस आता है उसे कभी भी कैरिड डाउन पे ड्रॉप नहीं करते, क्रॉस शिफ्टिंग करते हैं। तो जो क्रेडिट में बैलेंस आया था उसे नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में पोस्ट करेंगे, अप्रैल के बाद मई आता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन और इसकी शिफ्टिंग कर दी। इसी तरह से जो डेबिट में बैलेंस आए उसकी क्रॉस शिफ्टिंग कहाँ करेंगे, क्रेडिट में, उसको हम बोलेंगे May 1 और बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक वाला बैंक में और कैश वाला कैश में। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। तो जो भी बैलेंसिंग है उनकी कैसी शिफ्टिंग करनी है नेक्स्ट मंथ के लिए, क्रॉस शिफ्टिंग, क्लियर। और नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट है उसको आप बैलेंस को मेंशन करेंगे। आई होप 2 कॉलम कैश बुक आपको समझ आ गए हो, क्योंकि बेसिक आज खत्म करके नेक्स्ट क्लास में मेन चैप्टर्स पे सीधा जंप करेंगे, क्योंकि पहली 3 क्लास का मोटो यही था कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना, सो दैट यू आर एबल टू नो द डेबिट एंड क्रेडिट एंड द वे ऑफ पोस्टिंग ट्रांजैक्शन इन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, आई टोल्ड यू कि हमने 2 तरह की चीजें की थी। लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस पहले क्या करते हैं, जर्नल में एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करते हैं। बट
ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, वो क्या करते हैं, सब्सिडी बुक बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सब्सिडी बुक बहुत टाइप की होती है, बट 10 क्लास में हम सारी सब्सिडी बुक के न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, तो जिसमें कंफ्यूजन होता है कैश बुक में, वो मैंने आपको उसके दोनों वे, कैश और बैंक कॉलम और सिंपल कैश बुक यानी कि कैश कॉलम का हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि जो आपने सिंपल जर्नल एंट्री करना सीखा था, तो उस जर्नल एंट्री को आप लेजर में किस तरह से पोस्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो आपने जर्नल में पोस्टिंग करनी सीखी थी, वही क्वेश्चन ले रही हूँ जो लास्ट क्लास में हमने किया था। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लेजर और ट्राई बैलेंस में किस तरह से हम लोग पोस्टिंग करेंगे, तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने सीधा जर्नल एंट्री से उठाया है। पहले आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर लेजर में पोस्टिंग करनी है और बैलेंसेस को ट्रांसफर करना है। एज आई टोल्ड यू, पहले रिकॉर्ड होगा, फिर क्लासिफिकेशन होगा, फिर समराइजिंग होगा। तो अभी मैं आपके सामने जो डिस्प्ले कर रही हूँ ये जर्नल एंट्री है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन जर्नल एंट्री को कैसे लेजर में पोस्ट करना। देखिए, आपको मैंने बताया कि सब्सिडी बुक में गिनती की बुक्स है, यानी कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और एक जो कहीं ट्रांजैक्शन नहीं आए उसे कहाँ पोस्ट कर देते हैं, जर्नल प्रॉपर में। लेकिन जर्नल में सारी ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेस पे पोस्ट करते हैं। सपोज ये मैंने जर्नल एंट्री पोस्ट की हुई है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो अब लेजर कैसे बनाते हैं, जितने भी इसमें अकाउंट आते हैं सबका लेजर बनता है। सपोज पहला क्या अकाउंट आया है, कैश अकाउंट, जो भी मैंने पहले बनाई वो थी कैश बुक, अब मैं क्या बना रही हूँ, कैश अकाउंट। तो सबसे पहला मेरा जो लेजर है वो है कैश अकाउंट। अब पोस्टिंग ध्यान से देखिएगा किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। आपको कैश अकाउंट बनाना है, जिस चीज का अकाउंट बनाओगे उसका आपको नाम रिपीट नहीं करना। डियर, आपके जो भी डाउट हो, रेलेवेंट डाउट जो कि स्टडी से रिलेटेड हो, उनको आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन मत डालिए, जो पढ़ाई से रिलेटेड है, जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं फॉर टुडे क्लास, काइंडली पोस्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो हमारा जनवरी 1 का क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जहां पे जिस भी अकाउंट का लेजर बना रहे हो उसके बेस पे आप डिसाइड करोगे कि अमाउंट डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट यानी कि अमाउंट कहाँ पे आनी चाहिए, डेबिट साइड। दिस इज डेबिट साइड एज आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, एंड ये हमारी क्या है, क्रेडिट साइड। तो कैश अकाउंट के में डेबिट में अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट है, 2 लाख। नाम किसका लिखते हैं, अपोजिट का नाम लिखते हैं। ये जो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है किसकी वजह से हुआ है, कैपिटल की, टू कैपिटल। डेट क्या है, Jan 1। अब जहां पे भी कैश है इसको समराइज कर दो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में भी हमारे पास कैश है, कैश क्या है, क्रेडिट है। कैश क्रेडिट है तो अमाउंट कहाँ आएगी, कैश के क्रेडिट साइड। कितनी अमाउंट है, 50,000। कैश क्रेडिट हुआ किस वजह से, परचेजेस की वजह से, बाय परचेजेस अकाउंट, एंड द अमाउंट इज 50,000 एंड डेट इज Jan 3। फिर देखिए कहीं पे कैश है, नेक्स्ट 2 एंट्री में कैश नहीं है, उसके बाद हमारे पास क्या है, कैश है। लास्ट एंट्री में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो अमाउंट कहाँ आएगी, कैश अकाउंट की क्रेडिट में। कितनी अमाउंट है, 1 लाख। कैश अकाउंट क्रेडिट किस वजह से हो रहा है, नाम किसका लिखते हैं, अपोजिट का। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ए लिमिटेड की वजह से, बाय ए लिमिटेड। डेट इज Jan 22। यानी कि जिस चीज का अकाउंट बना रहे हो, जितनी भी जर्नल एंट्री है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सब में से आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट की सारी एंट्री को एक जगह पे पोस्ट कर देना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डेबिट एंड क्रेडिट। एज आई टोल्ड यू, जिसका अकाउंट बना रहे हो उसके बैलेंस के बेस पे डिसाइड करो डेबिट होगा या क्रेडिट, और उसके बाद पोस्टिंग करो अपोजिट से। जैसे कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में एंट्री आई किससे, अपोजिट से, कैपिटल से। कैश अकाउंट क्रेडिट है, एंट्री आएगी क्रेडिट साइड, किसकी वजह से, अपोजिट से, परचेज। कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड एंट्री आएगी किसकी वजह से, ए लिमिटेड की। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग फिगर क्या करेंगे, टोटल करेंगे दोनों साइड का। डेबिट साइड का टोटल 2 लाख है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,50,000।
एज आई टोल्ड यू इन कैश बुक ऑल्सो, बैलेंसिंग करते समय क्या करना है, जो बिग टोटल है उसी को दोनों साइड में लिखते हैं। 2 लाख बिग टोटल है तो दोनों साइड में क्या लिखेंगे हम, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगी, जहां पे स्मॉल टोटल होगा, तो स्मॉल टोटल कहाँ पे है हमारा, क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और डेट क्या आती है, जिस भी मंथ की रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसका लास्ट डेट, जनवरी की लास्ट डेट क्या है, 31 जनवरी। 2 लाख डेबिट है, 1,50,000 क्रेडिट है, बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, आपको क्या पता है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल लेस कर दो, 2 लाख माइनस 1,50,000, बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, 50,000। कोई भी अकाउंट आपको क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं ड्रॉप करना है, एज आई टोल्ड यू, इसकी शिफ्टिंग कहाँ कर दो आप, नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में। जनवरी के बाद क्या आएगा, फेब आएगा, फेब 1, क्रॉस शिफ्टिंग करनी है, बैलेंस कहाँ बचा है, क्रेडिट साइड, तो इसका ओपनिंग बैलेंस का होगा क्रॉस, उल्टी साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फेब 1, और अमाउंट कितनी हो जाएगी, 50,000। क्लियर। और इसको अकाउंट को क्या कर दोगे, स्केल से क्लोज कर दोगे। देन आफ्टर दैट फिर जर्नल एंट्री का नेक्स्ट आइटम पिक करेंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है, कैपिटल। कैपिटल सिर्फ एक ही है, कैपिटल की पोस्टिंग कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यानी कि अमाउंट कहाँ आएगी, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। किस नाम से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, कैश की वजह से। अमाउंट है कैपिटल की 2 लाख और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। यानी कि किसका नाम लिखना है, अपोजिट का। जो भी अकाउंट जर्नल एंट्री है, अपने दिमाग में जर्नल एंट्री सोचनी है और उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग करनी है। कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट अमाउंट आएगी क्रेडिट में, लेकिन जिसका अकाउंट है उसका नाम कभी रिपीट नहीं करना। किसका नाम लिखते हैं, अपोजिट का, जैन 1, और नाम किसका लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही आइटम है, यही क्या हो जाएगा टोटल, और यही क्या हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। 2 लाख, दोनों साइड इसी को लिख देंगे, 2 लाख। डेबिट में कुछ माइनस करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, जैन 31, ये क्या हो जाएगा आपका, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 2 लाख, आपको पता है कोई भी कैरिड डाउन पे ड्रॉप नहीं करना, हर बैलेंस को कहां पे ड्रॉप करना, हमें ब्रॉट डाउन पे। तो ब्रॉट डाउन पे जब हम ड्रॉप करेंगे तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट मंथ, जैन के बाद आता है फेब, फेब 1, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 2 लाख। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट आइटम, कैश हो गया, कैपिटल हो गया, नेक्स्ट आइटम क्या है, परचेज। परचेज भी वन टाइम ही यूज हुआ है पूरी ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट आइटम हम रेडी कर रहे हैं, परचेज अकाउंट। मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए छोटा ही क्वेश्चन लिया है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ऑल दी लेजर इन वन क्लास। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। परचेज डेबिट हो रहा है, अमाउंट कहाँ आएगी, परचेज अकाउंट के डेबिट में। कितनी अमाउंट है, 50,000। आपको बताया जिसका अकाउंट है उसका नाम नहीं यूज करना, अपोजिट का। परचेज डेबिट हो रहा है, इसके अपोजिट में कौन है, कैश, तो क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट, एंड द डेट इज Jan 3। फिर इसमें और कोई आइटम है ही नहीं पूरे ट्रांजेक्शन में, इसी का क्या कर देंगे हम, टोटल कर देंगे। यही 50,000 टोटल आ जाएगा और यही क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि कुछ और माइनस प्लस करने के लिए इसमें है ही नहीं। लास्ट डेट बैलेंस कैरिड डाउन, लास्ट डेट को Jan 31 को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट इज 50,000, एंड देन इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में पोस्ट कर देंगे। नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग यानी कि फेब 1, क्रॉस शिफ्टिंग, बैलेंस क्रेडिट साइड है तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। सिमिलरली डू फॉर अदर, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ए लिमिटेड है, अब हमारे पास यही ट्रांजेक्शन्स बची हैं। तो पहले हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं फर्नीचर का, फर्नीचर अकाउंट।
फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो अब अमाउंट कहाँ पोस्ट करेंगे? डेबिट साइड में। फर्नीचर के डेबिट साइड में 70,000। फर्नीचर डेबिट किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने ये ए लिमिटेड से क्रेडिट परचेज किया है। ए लिमिटेड का नाम है, इस ट्रांजेक्शन को देख के पता चल रहा है कैश नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट है। बाकी आपको क्या करना है, आपको लेजर पोस्टिंग में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको देखना है फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो डेबिट में अमाउंट आएगी किससे? अपोजिट अकाउंट से। अपोजिट अकाउंट क्या है? ए लिमिटेड। तो आप लिख सकते हो टू ए लिमिटेड। और डेट क्या है? Jan 4। फर्नीचर की भी एक ही एंट्री है, इसी को टोटल कर देंगे 70,000। Jan 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 70,000। कैरी डाउन पे कभी ड्रॉप नहीं करना है, हमें ओपनिंग बैलेंस पे ड्रॉप करना है। तो जो Jan 31 का क्लोजिंग बैलेंस है, Feb 1 का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। क्रॉस शिफ्टिंग टू बैलेंस ब्रोट डाउन एंड द अमाउंट इज 70,000 एन अकाउंट क्लोज। ये ध्यान रखना, आप देख रहे होगे जितने भी टोटल हैं सब टोटल के नीचे मैंने डबल लाइनिंग लगाई है। टेक्निक यही होती है कि आपको इस तरह से पर्टिकुलरली सोल्व करना है। Then after that, furniture done. Now A Limited. A Limited. A Limited Jan 4 की ट्रांजेक्शन में क्रेडिट हो रहा है, तो जो हमारी Jan 4 की ट्रांजेक्शन है उसमें हमें क्या करना है? इसको क्रेडिट करना है। 8 particulars LF amount, date particulars LF amount, फॉर्मेट सबका वही रहेगा। अभी आप देख रहे हो कि जो Jan 4 की ट्रांजेक्शन है, 4 Jan की ट्रांजेक्शन में ए लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट में अमाउंट आएगी कितनी? अमाउंट है 70,000। ए लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, अपोजिट में कौन अकाउंट है? फर्नीचर, उसका नाम लिखना है बाय फर्नीचर अकाउंट। देन आफ्टर दैट ये आपका प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे ए लिमिटेड क्रेडिट हो रहा है, ए लिमिटेड को फिर से क्रेडिट करना है कितनी अमाउंट से? 80। ए लिमिटेड की क्रेडिट में पोस्टिंग 80। नाम किसका लिखना है? जो अपोजिट है। अपोजिट कौन है? बिल्डिंग। Jan 10 बाय बिल्डिंग। उसके बाद ए लिमिटेड डेबिट हो रहा है 1 लाख से। ए लिमिटेड के डेबिट में 1 लाख लिख दोगे। नाम किस अकाउंट का लिखना है? अपोजिट का। अपोजिट में कौन है? कैश अकाउंट। Jan 22 टू कैश अकाउंट। इसके बाद दोनों का टोटल करते हैं। आप टोटल करोगे तो आप देखोगे कि क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,50,000 और डेबिट साइड का टोटल है 1 लाख। तो जो बिगेस्ट टोटल है उसी को दोनों साइड लिखते हैं 1,50,000। बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे 1,50,000 माइनस 1,50,000। कब लिखना है बैलेंसिंग फिगर? लास्ट डेट को टू बैलेंस कैरिड डाउन। हर एक बैलेंस को नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग डेट पे शिफ्ट करना है। Jan के बाद क्या आ जाएगा आपका? Feb 1। क्रॉस शिफ्टिंग, यहाँ पे डेबिट में बैलेंस है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन एंड द अमाउंट इज 50,000। अब हमारे पास ये भी हो गया, ए लिमिटेड भी हो गया, सिर्फ एक अकाउंट बचा है बिल्डिंग। लास्ट हमारा अकाउंट है ट्रांजेक्शन का बिल्डिंग। बिल्डिंग डेबिट हो रही है 80,000 से। Jan 10। नाम किसका लिखना है? अपोजिट अकाउंट का। बिल्डिंग डेबिट हो रही है, अपोजिट में कौन है? ए लिमिटेड टू ए लिमिटेड। एक ही ट्रांजेक्शन है, इसी का क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। कुछ माइनस प्लस का इसमें कोई नीड नहीं है। यही क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि टोटल सेम है, यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए नहीं है। यही क्या हो गया? बैलेंसिंग फिगर। कब? Jan 31 मंथ की लास्ट डेट को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 80,000 एंड देन नेक्स्ट मंथ Feb 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट हो गई 80,000। इसको क्या बोलते हैं? ये सेकंड स्टेप होता है। आपको बताया पहले लेजर में पोस्टिंग होती है। लेजर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जनरल में सबसे पहले जनरल में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद लेजर में इस तरह से जितने भी जनरल में अकाउंट आते हैं सबका लेजर बनाते हैं।
उसके बाद लेजर बनाने के बाद सबको कहाँ पोस्ट करते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ध्यान से समझिएगा, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें सबसे पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो पहले बनाती हैं सब्सिडी बुक, और कुछ इंडस्ट्री सब्सिडी के बाद लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और कुछ डायरेक्टली सब्सिडी बुक से ट्रायल बैलेंस भी रेडी करती हैं। ध्यान से देखिएगा, ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को फाइंड आउट करता है। यानी कि आपने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं जर्नल में, और जर्नल से जो लेजर में पोस्ट की है उसकी जो अर्थमेटिक एक्यूरेसी है, यानी कि पोस्टिंग में किसी टाइप का कोई एरर तो नहीं हो गया है, वो एरर हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके पता चलता है, और फर्दर एनालिसिस में भी ये फैसिलिटेट करता है। बहुत सारे एरर्स होते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। तो ट्रायल बैलेंसेस में सिर्फ हमें एक ही टाइप के एरर का पता चलता है, वो होते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर आपके ट्रायल बैलेंस से आपको पता नहीं चलेंगे। ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे उनके इंपैक्ट शो नहीं होगा। लेकिन अगर एरर ऑफ कमीशन है, यानी कि आपने गलत अकाउंट में पोस्टिंग कर दी है या गलत अमाउंट की पोस्टिंग कर दी है, 100 की जगह पे आपने 1000 पोस्ट कर दिया है, या 101 की जगह पे 110 पोस्ट कर दिया, इस तरह की गलती हमें ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में किस तरह से इन बैलेंसेस को सम अप करते हैं। फॉर्मेट होता है सीरियल नंबर, अकाउंट्स, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। तो पहली हमारा जो फर्स्ट अकाउंट है उसको हम पहले पोस्ट करेंगे। देखिए कैसे उसको हम लेके आएंगे। सबसे पहले हमने अकाउंट बनाया था कैश का, और कैश का जो हमारा अकाउंट था उसका बैलेंस क्या था? ओपनिंग बैलेंस 50,000। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके होते हैं इसको देखने के। एक, कुछ लोग इस तरह से देखते हैं कि अगर डेबिट साइड का टोटल बिग आया है तो डेबिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड का टोटल बिग आया है तो क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन अगर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर पाते तो आप सिर्फ ट्रायल बैलेंस में जो बिगनिंग बैलेंसेस आपने निकाले हैं क्लोजिंग को क्रॉस शिफ्ट करके उनको पोस्ट करिए, और उनके बेस पे डिसीजन मेकिंग करिए। कैश अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ पे है? डेबिट में। तो इसकी पोस्टिंग कहाँ करोगे आप? डेबिट में। आप लिखोगे हमारा पहला अकाउंट था कैश अकाउंट, जिसका हमारा डेबिट बैलेंस आया था कितना? 50,000। देन अकाउंट नंबर 2, आपका जो सेकंड अकाउंट है, द सेकंड अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कितना आया है? 2 लाख क्रेडिट में। तो आपको कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करना है? क्रेडिट में। आप करेंगे सेकंड, आपका अकाउंट था कैपिटल अकाउंट, आपका क्रेडिट बैलेंस है कितना? 2 लाख। देन आफ्टर दैट थर्ड अकाउंट, कैपिटल के बाद हमने थर्ड अकाउंट बनाया परचेज अकाउंट, और हमारा परचेज अकाउंट का बैलेंस कैसा आया था? डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड है ओपनिंग बैलेंस। आपको बोला बड़ा टोटल किसका है, छोटा टोटल किसका है? डोंट गो फॉर दैट। अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हो तो जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसमें ओपनिंग बैलेंसेस को क्या कर दीजिए? शिफ्ट कर दीजिए। तो परचेज का ओपनिंग बैलेंस जो कि हमने कैलकुलेट किया था नेक्स्ट मंथ के लिए वो है 50,000। 50,000 डेबिट है, आप इसको पोस्ट कर देंगे 50,000 डेबिट, और अकाउंट का नाम क्या है? परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट के बाद आपने रेडी किया फर्नीचर अकाउंट। देन आफ्टर दैट फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट नंबर 4 फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट आपका क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, तो आप इसे डेबिट साइड में लिखेंगे। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट इज ए लिमिटेड अकाउंट। ए लिमिटेड का जो आपका अकाउंट है उसका बैलेंस क्या आया है? आपका क्रेडिट बैलेंस आया है, उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। बैलेंस देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ए लिमिटेड का बैलेंस है क्रेडिट, और कितना है? 50,000। क्रेडिट में आप मेंशन करेंगे 50,000। ये हो गया आपका ए लिमिटेड। एंड लास्ट अकाउंट हमने किसका बनाया था? बिल्डिंग का। लास्ट अकाउंट हमारा बिल्डिंग अकाउंट था, और बिल्डिंग अकाउंट हमारा क्या आ रहा है? डेबिट आ रहा है। डेबिट 80,000 से।
फिक्स्ड अकाउंट हमारा बिल्डिंग अकाउंट है। बिल्डिंग अकाउंट 80,000 और इसके बाद दोनों साइड का क्या कर देते हैं टोटल। 2,50,000 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल क्या है 8 और 7 15, 1,50,000 15 2 लाख 2,50,000। अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया है, इसका मतलब आपने लेजर से जर्नल से लेजर पोस्ट करते समय किसी भी टाइप का एरर कंडक्ट नहीं किया। किसी भी टाइप का मतलब एरर ऑफ कमीशन आपने कंडक्ट नहीं किया। एज आई टोल्ड यू, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर और एरर ऑफ ओमिशन ट्राई बैलेंस से पता नहीं चलती। इससे सिर्फ ये पोस्टिंग में जो एरर होते हैं, गलत अकाउंट में पोस्ट कर देना, गलत नंबर पोस्ट कर देना, गलत मनी पोस्ट कर देना, वो ही सिर्फ हमें पता चलती। तो अगर दोनों साइड मैच हो गई, इसका मतलब आपका एरर ऑफ कमीशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं कंडक्ट हुआ है। ये होता है होल अकाउंटिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में डियर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट क्लास में एनपीओ करेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो आप लोग पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। तो एनपीओ का बेसिक आप नेक्स्ट क्लास के लिए पढ़ के आइए। नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस। थ्रू आउट द ईयर अगर आप ट्रांजेक्शन को एक ही पर्टिकुलर लेजर में, एक ही पर्टिकुलर कैश बुक में शो कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में फिर आप अपने कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बैलेंस को दिखाते हो। यानी कि अगर आपके पास सपोज जनवरी का डेटा है, फेब का डेटा है, आपके पास काफी सारे मंथ्स का डेटा एक ही क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करते हैं सीधा एनुअल डेटा पे आते हैं। अभी हमने जो डेटा स्टडी किया वो मंथली था, तो एक मंथ का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ के लिए क्या है वो ओपनिंग बैलेंस। तो आप मंथ वाइज भी आज की डेट में, एज आई टोल्ड यू, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि अब पूरे ईयर का कोई ऑर्गेनाइजेशन वेट नहीं करती है। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली अपनी डेटा को एनालाइज करती रहती हैं टू नो द रिजल्ट, सो दैट दे आर एबल टू टेक द करेक्टिव एक्शन ऑन टाइम। कि भी कहीं पे भी अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से लैग करी है तो उसके रीजन फाइंड आउट करके उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, आसानी से ये देखा जा सके कि आप पर्टिकुलरली किस तरह से उस प्रॉब्लम को एज अर्ली एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे बैलेंसेस को 31st, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, क्योंकि आप कंपनी में अकाउंट नहीं बना रहे हो, यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू कैन डील। अगर आपको सिर्फ एक मंथ का डेटा गिवन है तो उस सिचुएशन में आपको उस मंथ की एंड डेट को क्लोजिंग बैलेंस निकालना है और उस मंथ की स्टार्टिंग, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट में आपको क्या करना है ओपनिंग बैलेंस। सी डियर, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अगर क्वेश्चन में होता भी है तो सिर्फ हम कॉलम को बना के उसमें अमाउंट पोस्ट करते हैं, उसकी बैलेंसिंग फिगर नहीं करते। जो भी डिस्काउंट की वैल्यू होती है डेबिट और क्रेडिट में, उस वैल्यू को सिर्फ पोस्ट करते हैं और उसको पर्टिकुलरली बैलेंसिंग फिगर नहीं करते। दैट्स वाई मैं थ्योरेटिकली आपको बोल रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता 2 कॉलम है तो आप दोनों कॉलम मेंशन करेंगे, डिस्काउंट एंड कैश और कैश और बैंक। ट्रेडिशनली सिर्फ कैश और डिस्काउंट पे था, बट नाउअडेज यूजिंग बोथ द थिंग्स। ये चीज ध्यान रखना है कि आप कॉलम गिवन ट्रांजैक्शन के बेस पे करोगे। अगर आपको 2 कॉलम गिवन है और आपको कैश और बैंक दोनों की ट्रांजैक्शन है तो वहां पे डिस्काउंट को स्किप करके आपको कैश और बैंक को कंसीडर करना है। और अगर आपको सुटेबल कैश बुक गिवन है तो 3 कॉलम यूज करोगे, डिस्काउंट, कैश और बैंक। ड्रॉइंग्स, आई टोल्ड यू, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, अमाउंट विथड्रॉ बाय ओनर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस
फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग्स। आई थिंक आपकी ये फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मैं पहली क्लासेस में इसीलिए आपको सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि जब हम मेन न्यूमेरिकल करेंगे तो आप आइटम में ही उलझे रहोगे कि इसका मीनिंग क्या है। पोस्टिंग तो बाद में समझ आएगी, इसलिए पहली 3 क्लास में मैंने सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट आपको समझाया है, ताकि आपको आगे अंडरस्टैंड करने में किसी चीज को प्रॉब्लम ना हो। तो कैपिटल क्या है? बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में मनी इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल है, और बिजनेस का ओनर पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से विड्रॉ करता है कैश या गुड्स, वो क्या है? ड्रॉइंग से। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ओवरड्राफ्ट का मीनिंग है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है, जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन का जो बैंक में अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, और उसको फैसिलिटी होती है कि जितनी उसकी वैल्यू उस अकाउंट में मेंशन है उससे ज्यादा का वो पेमेंट कर सकता है। तो जितना ज्यादा वो वैल्यू उसमें से विड्रॉ करता है उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। सपोज एक बिजनेसमैन के बैंक में है 3 करोड़ रुपीस, और उसको 50 लाख की प्रिविलेज अवेलेबल है कि वो 50 लाख तक ओवरड्रॉ कर सकता है। तो उसने अगर 3 करोड़ 25 लाख की पेमेंट कर दी है, तो वो 25 लाख क्या है? उसका ओवरड्राफ्ट। जब तक वो बैंक में वो पैसा डिपॉजिट नहीं कराएगा तब तक उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देता जाएगा। यू कैन सी दैट ओवरड्राफ्ट क्या है? एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस भी है बिजनेस के लिए। जर्नल में बेटा, जर्नल में लेजर फोलियो और लेजर में जर्नल फोलियो होगा। देखिए, आप जो जर्नल एंट्री कर रहे हो तो उसमें हम जर्नल एंट्री को लेजर में कहाँ पोस्ट करके ले जा रहे हैं, तो वहां पे हम लिखते हैं लेजर फोलियो, और जो लेजर बनाते हैं लेजर में हम लिखते हैं जर्नल फोलियो कि ये एंट्री कहाँ से पोस्ट होके आ रही है। टू और बाय लिखना कंपलसरी नहीं है। जो स्टडी मटेरियल है लास्ट क्लास में एक गूगल ड्राइव की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, चैट बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगी। यू कैन रेफर दैट लिंक एंड देन डाउनलोड द स्टडी मटेरियल। बेटा पहले बेसिक क्लियर करेंगे, लास्ट क्लासेस का काम है इंपॉर्टेंट क्या है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली क्लास में इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे पहले सीखने की कोशिश करते हैं। आपके साथ लास्ट में जो भी हम 10 क्लास में सारी चीजें स्टडी करेंगे उसको भी एक गूगल ड्राइव में सम अप कर दूंगी ना, आई विल शेयर इन द चैट बॉक्स। आप वहां से लिंक को सेव करके यू कैन डाउनलोड ऑल द मटेरियल विच वी डिस्कस इन द शेड्यूल 10 क्लासेस। नेक्स्ट क्लास में एनपीओ आप लोग पढ़ के आएंगे, एनपीओ हम लोग डिस्कस करेंगे, और आई होप एनपीओ आप अगर बेसिक करके आओगे देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप एनपीओ का बेसिक रीड आउट करके आओगे प्रॉपरली, सो दैट आपको डिफिकल्टी ना हो समझने में। डियर, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ के आओगे देन यू आर ओनली एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ क्लासेस। आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होगा टू गेट द एडवांटेज ऑफ क्लासेस। और रेलेवेंट क्वेश्चन प्लीज पोस्ट करिए। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर। मैम क्लास एंड कर दी आपने? नहीं सर, कर रही हूँ मैं एंड, अभी मैसेज किया था मैंने ग्रुप में। एंड कर दूं सर? नहीं, पर आपका वीडियो तो नहीं आ रहा है इसमें कहीं पे भी। नहीं नहीं, वीडियो ये मेरे इसमें कैमरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वीडियो स्टॉप हो गया है। अच्छा, कब हाँ से? डिस्प्ले, कितनी देर हो नहीं गई? नहीं नहीं नहीं, वीडियो तो नहीं आ रहा था, डिस्प्ले मैंने अभी स्टॉप किया है। डिस्प्ले क्लास एंड करने के लिए डिस्प्ले मेरा शो हो रहा था। पीपीटी शो हो रही थी?
हाँ जी पीपीटी शो हो रही थी। अभी बच्चों की क्वेरी ली है तो तब मैंने उसको डिस्प्ले को ऑफ करके जो भी बच्चों के क्वेश्चंस थे उनको रीड आउट करके उनको आंसर किया है। ठीक है मैम, मैं एंड करता हूँ मैम सेशन। हाँ जी ओके सर। सर अभी